Good morning to all of you students. Today we will discuss about the colligative properties of dilute solution. Because in the previous lecture we have discussed about the Raoult's law. So what is colligative properties of dilute solution? And those solution in which the amount of solute is very less than from solvent. It means that we can say that the amount of solvent is taken in large amount and amount of solute is taken in very less amount. So those type of solution are called dilute solution. And a dilute solution are those solution which having the less amount of solute and more amount of solvent are called dilute solution. In another way, in another definition of the dilute solution is those solution which containing the more amount of water are called dilute solution. The colligative properties depends upon the solute. Colligative properties are depends upon the solute, and those solute which are taken in the number of particles, and we can say that the number of particles of solute are present in any solvent, then this type of properties are known as colligative properties. Another way we can say that colligative properties are depend upon the number of particles of solute, not the nature of the solute. क्लियर? कहने का मतलब ये है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स नंबर पर डिपेंड करती हैं, नेचर पर डिपेंड नहीं करती. एंड इट इज ऑफ फोर टाइप्स. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ फोर टाइप्स. फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग of the vapor pressure. सेकंड होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. थर्ड होता है एलिवेशन इन boiling point. फोर्थ होता है ऑस्मोटिक प्रेशर. So we can say that the colligative properties are of four types. First is relative lowering of the vapor pressure. Second is that depression in freezing point. Third is that elevation in boiling point. Fourth is osmotic pressure. तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेसिंग में जो वेपर प्रेशर होता है उसका रिलेटिव लोअरिंग का होता है. जो वेपर प्रेशर का रिलेटिव लोअरिंग निकालते हैं दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर. अब पीछे हमने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ और मैंने बताया था राउल्ट्स लॉ दो प्रकार के लिक्विड के लिए होते हैं, एक वोलेटाइल लिक्विड एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड. तो वोलेटाइल लिक्विड के लिए हम पीछे लेक्चर में पढ़ चुके हैं राउल्ट्स लॉ. अब यहाँ पर ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर जो आता है वो आता है नॉन वोलेटाइल
के लिए। किसके लिए आता है? नॉन वोलेटाइल के लिए। तो नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। नाउ सपोज दैट दो we take two pressure P and PS. P and PS. So PS is equal to pressure of the solution, यानी vapor pressure of the solution. Vapor pressure of the solution. P is equal to pressure of pure solvent. P इक्वल टू होता है प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब बात ये आती है कि व्हेन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन P, ये होता है कि जैसे प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट में से प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन घटाएं और उसे सब्सट्रैक्ट करें तब, और उसे किससे? प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से डिवाइड कर दें, तो दैट इज नोन एज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर। ये क्या होता है? रिलेट RLBP, इसे कहते हैं हम RLBP। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है? RLBP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज नोन एज N अपॉन N प्लस N, where we can say that N is the number of moles of solute and capital N is the numbers of moles of solvent। दोनों नियम, both names are approximately same, clear, but having some difference, because Raoult's law for volatile component has the partial vapor pressure is directly proportional to its mole fraction, but the relative lowering vapor pressure या difference या lowering of vapor pressure is directly proportional to number of moles of solute and solvent and total number of solute and solvent। या we can say, जैसे हमने मोल फ्रैक्शन निकाला था, मोल फ्रैक्शन में हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, यानी मोल फ्रैक्शन किसके निकालते थे? सॉल्यूट के। तो ये किसका होगा? दैट इज नोन एज आल्सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? इफ बी कैन, अब ये डिस्कस जो हो रहा है, सॉरी बेटा, ये डिस्कस जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के। किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मींस सॉल्यूट, भाई सॉल्यूट क्या है? नेगेटिव। सॉल्यूट क्या है? लेस देन 0, बहुत कम है, वेरी लो या वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी। देन वी कैन से n इक्वल टू क्या हो सकता है? नेगेटिव 0 मान सकते हैं इसे। ये क्लियर है कि 0 होगा। जब 0 होगा तो क्या होगा? P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू N अपॉन N। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो सॉल्यूट है, यहाँ पर n जो है सॉल्यूट का क्या है? नंबर ऑफ मोल, और यहाँ पर भी क्या है? नंबर ऑफ मोल। तो जो सॉल्यूशन है यहाँ पर हमने क्या किया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है दैट इज n इक्वल टू 0, that is n is equal to 0, then we can say P minus PS upon P is equal to n upon n. This is the Raoult's law. Yeah, we can say another RLBP, relative lowering of the vapor pressure, and again it is also known as the Raoult's law for non-volatile component या non-volatile solute, non-volatile liquid। क्लियर? इस प्रकार रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर यहाँ पर फिनिश होता है। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं,
ये नोट्स बनाते चले सभी बच्चे, ठीक है। और इससे आगे नेक्स्ट जो होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।